Hello dear students. Today we are going to start with the topic of Unit 1. That topic is arithmetic addition, subtraction for signed magnitude and 2's complement numbers. Then integer multiplication using Booth's algorithm. So in this topic we will be covering addition, subtraction and multiplication. But the number which we will be adding, subtracting or multiplying, those numbers will be of different types. So before covering this whole topic, we will be discussing that what type of number representations we have. So I have few notes. I will be sending the picture of these notes to you also. So these notes are about signed number representation. The heading of these notes is signed number representations. So what do you mean by signed number representations? Signed means whenever we have a number which have a specific sign. That sign can be positive or negative. In computers, in computer organization, whenever we are using any binary number, any decimal, octal or hexadecimal number, we need to consider the sign of this number also. So signed means that number can be positive or negative number. On the basis of that sign, we will be representing that number. So that topic becomes signed number representation. These are the features of signed number representations. So these are specially used to represent negative numbers. So whenever we have a positive number, we do not have any problem. We can directly add it, subtract it, multiply it or divide it. But whenever we have a negative number, how do we differentiate it from a positive number? So they are specially used to represent negative numbers. Then there are different ways of representing a negative sign. अभी जो हम methods पढ़ेंगे, they are the different ways where we can represent our negative numbers. Then if we have a mechanism to represent negative numbers, then we can perform subtraction by using addition method only. This third point is saying that whenever we are subtracting two numbers, suppose 10 minus 3 we are doing, this is subtraction, है ना? 10 minus 3 is subtraction, but this subtraction can be done by using addition only. कैसे? 10 प्लस और 3 को क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया, -3. बट जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप कहोगे मैम ये तो नेगेटिव ही हो जाएगा. नो, वट वी विल बी डूइंग इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज वी विल बी एडिंग 10 to -3. We will be converting 10 to binary form. We will be converting -3 to binary form, and then we will be adding. That will be performed as an addition, but actually this will perform a subtraction, because this minus sign will be taken into binary form. How it will be taken, we will be discuss it later. So this representation helps us to perform addition in spite of subtraction, क्योंकि subtraction में हमें borrow लेना पड़ता है, ठीक है? So we have different circuit. In spite of that, we can use an adder only, right? So therefore, negative binary number representation is very important to learn. Now we have these three methods which are very, very important. These can come in long question also. These can, any one of these topics can come in short questions also. 2 or 3 marks में आपको ये question आ सकता है. These are three methods to represent signed numbers. First is signed magnitude form. Signed मतलब जिसका sign हो, magnitude मतलब जिसको जो 3, 4 जो भी हमारी value है उसकी फॉर्म में अगर हमने अपने नंबर को रिप्रेजेंट करना है. सेकेंड होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, थर्ड होता है टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दीज थ्री टाइप्स ऑफ मेथड. फर्स्ट इज साइंड मैग्नीट्यूड. ये बहुत ही सिंपल है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं. नोट्स आप पढ़ लेना, मैं आपको कंसेप्ट पहले क्लियर कर देती हूँ. अगर मान लो आपके पास कोई नंबर है ये 0001101 एंड आपको कहा जाता है कि आप इसको, ये बाइनरी नंबर है ना, आपको कहा जाता है कि इस नंबर को आप डेसिमल साइंड मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करो, ठीक है? डेसिमल नंबर बनाओ, पर वो क्या होना चाहिए? साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन उसकी होनी चाहिए. तो क्या करोगे आप? हमेशा जब भी आपको बाइनरी में नंबर दिया जाए तो सबसे पहले देख लो कि उसका जो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट बिट है वो क्या है. जैसे ये ऊपर वाला मैं कंसिडर कर रही हूँ, इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट है 0. 0 होती है पॉजिटिव नंबर के लिए, और अगर लेफ्ट मोस्ट बिट 1 हो तो होता है वो नंबर नेगेटिव होता है. 0 मीन्स पॉजिटिव एंड 1 मीन्स नेगेटिव. तो आप फर्स्ट बिट तो आप छोड़ दो साइन के लिए. अगर यहाँ 0 है तो ये प्लस बन गया, और अगर नीचे वाले में मान लो ये क्या है,
1 है, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव नंबर बनेगा। अब आगे मुझे देखना है कि नंबर होगा क्या एक्चुअली डेसिमल में। अब इस बिट को छोड़ के बाकी मेरे पास जो बिट्स बची हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब ये जो मेरी बिट्स बची हैं इनको मैं डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लूंगी, इस बाइनरी नंबर को। कैसे, मैंने आपको बताया हुआ शॉर्टकट मेथड, ऊपर से इधर से लिखना शुरू कर दो, 1 2 4 8, ये दोनों तो जीरो हैं, इनके ऊपर अगर आप 16 और 32 लिखो डज नॉट मैटर, तो मैं नहीं लिख रही, बस हमें यहाँ तक देख लेना है, ठीक है। एक तो 1 है 1 के नीचे, एक 1 है 4 के नीचे, एक 8 के नीचे, तो इनकी जो ऊपर वाली वैल्यूज इनको ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 4 इज 5 प्लस 8 इज 13, तो ये पूरा नंबर क्या बन गया, 13, तो ये मेरा नंबर क्या बन गया, प्लस 13। ऐसे आप एक बाइनरी नंबर को साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, दिस नंबर विल बी डेसिमल नंबर प्लस 13, या इसको 13 लिखो तो ऑटोमेटिकली इट इज पॉजिटिव। बट व्हेन वी हैव 1 इन द स्टार्टिंग मीन्स दिस नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। एक तो यहाँ माइनस लग गया, फिर बाकी बिट्स जो बची हैं उनको जैसे हमने ऊपर किया है उनको डेसिमल में कन्वर्ट करके इसका भी सेम ही आएगा, दैट इज 13, सो दिस विल बिकम डेसिमल नंबर -13। बस ये होता है साइन मैग्नीट्यूड मेथड, जिसमें फर्स्ट बिट जो होती है साइन बिट होती है, अगर 0 है तो पॉजिटिव नंबर है, अगर 1 है तो नेगेटिव नंबर है। बाकी बिट्स को आप डेसिमल में अगर हैं, जैसे 13 डेसिमल में है, वो कहता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करो इसकी साइन मैग्नीट्यूड मेथड रिप्रेजेंटेशन से, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो 13 को। अगर माइनस है आगे 1 लगा लो, बाकी जो बिट्स हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। इसका जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स देखो क्लियर है, एक तो ये पार्ट है साइन बिट, बाकी क्या है, एक्चुअल बाइनरी नंबर है। सो दिस साइन बिट एंड एक्चुअल बाइनरी नंबर, दीज आर टू पार्ट्स ऑफ दिस साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म कह लो, मेथड कह लो, ठीक है। इन दिस मेथड लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ द गिवन नंबर इज कंसिडर्ड एज ए साइन बिट एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स आर ट्रीटेड एज इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग एन अनसाइंड बाइनरी नंबर। अब आप कहोगे कि ये यही है सिर्फ एक साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, नहीं, ये भी साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी नंबर की, ये वाली साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल नंबर की, ठीक है। इफ द लेफ्ट मोस्ट बिट इज 0 देन द नंबर इज पॉजिटिव, अभी जैसे मैंने बताया, एंड इफ इट इज 1 देन द नंबर इज नेगेटिव। इसका सिंटेक्स लिखना है आपने और इसको एक्सप्लेन करना है। फिर एक और एग्जांपल, जैसे ये हमने +13 -13 की, ऐसे ही सेम एक और 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे +53 और -53 की। अब पहले तो सबसे पहले +53 की क्या होगी, ये +53 है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। कौन सी रिप्रेजेंटेशन दिखानी है, साइन मैग्नीट्यूड मेथड वाली, याद कह लो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है। कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो प्लस है, प्लस मीन्स इधर वाली बिट क्या होगी, 0 होगी, पॉजिटिव साइन बिट है, ठीक है। बाकी जो 53 बचा इसको कर लो बाइनरी में कन्वर्ट, पर हमने कितनी बिट्स लेनी है ये देख लो, कि कह रहा है 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। 8 बिट रिप्रेजेंटेशन मीन्स पूरे साइन को मिला के और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके जो बिट्स आएंगी वो टोटल कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, ठीक है। एक तो निकल गई मेरी साइन में, बाकी कितनी यहाँ पे आनी चाहिए, 7, ठीक है। तो अब मैं 53 को जब कन्वर्ट करती हूँ बाइनरी में तो ये बनता है 1 1 0 1 0 1, ठीक है। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है ये। तो जब 53 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आ गया ये वाला। इसको एज इट इज यहाँ पे लिखना है, बट इधर से लिखना शुरू करना है, ठीक है। साइन बिट तो लिख ली हमने पहले, फिर ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे, फिर ये वाला 0, फिर 1 1 दोनों आगे, और अब एक बच गई इसको टोटल 8 बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इस साइड अगर 0 लगा दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे 0। सो ये बन गई रिप्रेजेंटेशन मेरी +53 की। सो इट इज दिस 7 बिट्स आर एक्चुअल बाइनरी वैल्यू ऑफ 53। ऐसे ही अगर -53 करना है, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ 0 की जगह क्या लग जाएगा, 1। सो दिस इज नेगेटिव साइन बिट। बाकी जो हमारी एक्चुअल बाइनरी वैल्यू ऑफ 53 है वो बन गई। टोटल हमारी होगी 8 बिट वर्ड है ये, तो हमारी 8 बिट्स होगी। सो दिस इज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। सिंपल है। फर्स्ट बिट देखनी है, अगर वो प्लस है तो वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, या 0 है तो पॉजिटिव है। अगर फर्स्ट वैल्यू क्या है, माइनस है या 1 है तो वो नेगेटिव है। उसके बाद आ जाते हैं हम, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं आपको दे रही हूँ, ये आप अपने आप करना, बाद में मैंने सॉल्व भी किया हुआ है इसको। कन्वर्ट -12 एंड +12 इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। जैसे यहाँ +53 और -53 किया था, उसको आप अपने आप करोगे। देन आई एम गिविंग यू ऑपोजिट ऑफ दिस,
कन्वर्ट 1111 इंटू साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म इन डेसिमल नंबर। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? बाइनरी नंबर गिवन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सीधा सा मेथड है, हमेशा जो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म होती है उसमें जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है वो होती है साइन बिट। तो अगर ये 1 है, इसका मतलब इसका साइन क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। बाकी बिट्स कितनी बची? 3। बस इन बाइनरी बिट्स को कन्वर्ट कर लो डेसिमल में। तो क्या होता है? 1 2 4, 4 + 2 6 + 1 7। तो ये क्या बन गया? 7। सो इट्स आंसर इज -7। ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, जिसमें आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा बाइनरी फॉर्म टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल और टू एनी अदर फॉर्म। कन्वर्जन आपको मैंने ऑलरेडी कराई हुई है, यू कैन रेफर टू देम फॉर कन्वर्जन। करोगे कैसे? ऐसे फर्स्ट बिट को आप देखोगे कि वो लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है, 0 है या 1 है, वैसे ही आप साइन बिट जो है वो मेंशन कर दोगे। देन कमिंग ऑन टू सेकेंड मेथड, दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड या वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट करना किसको? जो कोई आपको बाइनरी नंबर गिवन है उसकी सारी जीरोस को 1 कर दो, वंस को 0 कर दो, ठीक है। सो इन दिस मेथड पॉजिटिव नंबर रिमेन अनचेंज्ड, साइन जो है पॉजिटिव जो नंबर है वो ऐसे ही रहेगा एज बिफोर विद द साइन मैग्नीट्यूड नंबर। बट जो नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर के लिए कुछ नहीं होता है, नेगेटिव नंबर के लिए होता है। ये नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अनसाइंड नंबर। कैसे? एग्जांपल देख लो पहले। सी दिस इज +43। +43 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो 43 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 1 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है। तो हमने अगर, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको बस बाइनरी में कन्वर्ट करके, ये प्लस था यहाँ पे 0 आ जाएगा पॉजिटिव का, तो ये 8 बिट वर्ड बन गया। बट इफ वी वांट टू कन्वर्ट -43 इंटू वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, तो क्या होगा? जो +43 था, पहले तो इसका क्या कर लेंगे? 43 को किस में लिख लेंगे? बाइनरी में, और उसको एज इट इज पॉजिटिव वाले को ही, पॉजिटिव मीन्स आगे 0 ही लगाएंगे, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जहाँ पे 0 1 है वहाँ 0, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 0, 0 की जगह 0, राइट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जितनी भी जीरोज हैं 0 की जगह 1 लगा दो, 1 की जगह 0 लगा दो, ठीक है। सो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग जीरोज एंड वंस इन द बाइनरी। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग 4 बिट्स +5 इज रिप्रेजेंटेड एज, +5 कैसे लिखते हैं? 0 1 0 1। पर अगर इसी को नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे? बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, 0 1 बन जाएगा, 1 0 0 1 1 0। तो ये -5 की रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अगर आपको क्वेश्चन आए कि -5 को आप वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो पहले +5 की ये बना लोगे, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करके ये आंसर आप दे दोगे। देन कम्स टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या होता है? इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट भी करना होता है और उसमें +1 करना होता है, राइट। टूज कॉम्प्लीमेंट मीन्स 2 बारी हम कोई स्टेप परफॉर्म, 2 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग द गिवन नंबर, ठीक है। इन्वर्टिंग मीन्स वंस कॉम्प्लीमेंट एंड एडिंग 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द गिवन रिजल्ट। एग्जाम्पल देखो इसकी। द एग्जाम्पल इज, क्वेश्चन इज फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर दिस। इसका कहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फाइंड आउट, हम पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे? इन्वर्ट ईच बिट ऑफ दिस नंबर, देन इट बिकम्स, देखो 1 की जगह 0 की जगह 1 आ गया, 1 1 1 0 0 0, 0 की जगह 1, देन 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। ये क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप कि हमने इन सारी बिट्स को इन्वर्ट कर दिया, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। देन सेकेंड स्टेप होता है ऐड 1 टू इट। जब ऐड 1 टू इट करना है तो 1 इधर लिखना, इधर नहीं लिखना, इधर लिखना है और प्लस साइन लगा दिया। अब हमने 1 को इस पूरी जो बाइनरी नंबर है इसके साथ ऐड करना है। 1 + 1 क्या होता है? 0, पर 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है ना। 2 को जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में वो होता है 1 0, तो ये 0 बन जाएगा और ये बच जाएगा कैरी। अब अगला कैरी 0 के साथ ऐड होगा तो क्या आ जाएगा? 1। आगे कुछ ऐड करने के लिए है ही नहीं, एज इट इज बिट्स आ जाएंगी 0 0 1 0 1 0। तो ये क्या हो गया? आंसर आ गया मेरा। ये क्या बन गया मेरा? इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट बन गया। आपको भी ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये नंबर गिवन है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। सो दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट।
तो यही मैंने जो अभी समझाया वही. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग 1 to 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट बाइनरी नंबर. 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट. इसका क्या सिंटेक्स होता है, वैसे ही इस साइड साइन बिट होती है, बाकी जो नंबर है वो एक्चुअल नंबर होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्चुअल वैल्यू. अब मैं आपको कराने लगी हूँ कुछ क्वेश्चंस. फाइंड आउट 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9. फाइंड आउट 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9. अब कॉम्प्लीमेंट जब निकालना है तो हमेशा बाइनरी वैल्यूज का होता है, तो पहले तो हम 9 की बाइनरी वैल्यू निकाल लेंगे. 9 इन बाइनरी फॉर्म इज 1001. अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो. किसका, इसकी बाइनरी वैल्यू का 1001. ठीक है, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट जब निकलेगा तो सारी बिट्स इन्वर्ट हो जाएंगी. ये 1 बन गया 0, ये 0 0 1 1 और ये 1 बन गया 0. नाउ ऐड 1 टू इट. अब ये जो रिजल्ट आया आफ्टर इन्वर्टिंग द बिट्स वी विल ऐड 1 टू इट. 0 plus 1 is 1 1 1 0. So this 0 1 1 1 is 2's complement form of 9, right? Then we have a full example जहाँ पे आपको सारे मेथड मैंने एक ही पेज पे कैसे उनको एक ही नंबर को तीनों जो हमारी फॉर्म्स हैं, तीनों रिप्रेजेंटेशंस हैं, उनमें कैसे आपने उसको रिप्रेजेंट करना है वो मैंने ये बताया हुआ है. ठीक है, ये एक आप अपने आप खुद बनाना, यहाँ से देख के अगर आप पढ़ोगे यू कैन गेट कन्फ्यूज्ड. इसको समझ के खुद बनाना बैठ के और फिर इसको रेफर करना अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो. 8-bit रिप्रेजेंटेशन ऑफ +12 एंड -12. देखो पॉजिटिव नंबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नेगेटिव नंबर्स में प्रॉब्लम आती है. ठीक है, तो मैंने दोनों का यहाँ बताया हुआ है. जो +12 है, पहले तो +12 को मैं तीनों रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करूँगी, फिर करूँगी -12 को तीनों रिप्रेजेंटेशन से. +12 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है, देखो प्लस का मतलब फर्स्ट साइन बिट क्या होगी 0. ठीक है, अब क्योंकि 8-bit की रिप्रेजेंटेशन है, 12 को जब मैं कन्वर्ट करती हूँ बाइनरी में ये होता है 1100. क्योंकि 8-bit की रिप्रेजेंटेशन है तो कंप्लीट करने के लिए 8 को 0 जो पॉजिटिव है उसके बाद जीरोस लगा देनी है एक्स्ट्रा. सो ये होगी हमारी +2 की बाइनरी फॉर्म. अब इसको सबसे पहले हमने साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ +2 वो करना है. तो मैंने यहाँ 8 बॉक्सेस बना लिए हैं. सबसे पहले +12 को करना है ना, तो प्लस का मतलब 0 फॉर पॉजिटिव, तो फर्स्ट साइन बिट क्या बन जाएगी 0. बाकी ये जो नंबर है जो मेरा 8 बिट्स का है, बाकी बची कितनी है यहाँ पे मेरे पास बॉक्सेस 7. तो यहाँ से मैं 7 बिट्स को उठा लूंगी और यहाँ पे डाल दूंगी 0 0 1 1 0 0 0 0 0. तो ये लेफ्ट ओवर 7 बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर यहाँ पे लगा दूंगी. तो ये मेरी साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, +12 की सॉरी. देन इसी की हम 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करेंगे +12 की. +12 वैसे ही मैंने अब 8 बिट्स में ही करनी है तो 8 बॉक्सेस बना लिए. पॉजिटिव मीन 0 फॉर पॉजिटिव, मैंने 0 लगा दिया. अब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में चाहे 1's कॉम्प्लीमेंट पूछे 2's कॉम्प्लीमेंट पूछे नहीं करना होता. ये 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ये नेगेटिव नंबर्स के लिए होते हैं. तो हमने क्या करना है, बाकी ये जो 7 बिट्स हैं, ये जैसे ऊपर साइन मैग्नीट्यूड में की थी ना, 7 बिट्स यहाँ से उठाई +12 के, इनको 7 बिट्स को एज इट इज यहाँ पे लिख देना है 0 0 1 1 0 0 0. सो लेफ्ट ओवर 7 बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर. ऐसे ही जब साइन 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ +12 करेंगे वो भी सेम आएगी. +0 फॉर पॉजिटिव नंबर फर्स्ट बिट, बाकी 7 की 7 वही वाली बिट्स उठा के यहाँ पे लगा देंगे लेफ्ट ओवर 7 बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर. ठीक है, देखो जो पॉजिटिव वैल्यूज होती है उनके लिए ये सारी रिप्रेजेंटेशन सेम होंगी. पॉजिटिव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे ये डिफरेंस किस लिए होते हैं, ये सारी जो फॉर्म्स बनी है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनी है, नेगेटिव नंबर को, कि कैसे हम एक नेगेटिव नंबर को डिफरेंट वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अब आते हैं हम नेगेटिव नंबर पे. फर्स्ट इज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ -12. सो -12 है, यहाँ पे वैसे ही 8 बॉक्सेस बना लिए. फर्स्ट क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ 1 फॉर नेगेटिव, यहाँ साइन बिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. अब बाकी जो बची वो कहाँ से आएंगी, ये है मेरा वो जो +12 था ना उसी की लास्ट वाली 7 बिट्स. यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे क्योंकि ये साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, बस उसकी बाइनरी फॉर्म की 7 बिट्स इधर वाली उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे 0 0 1 1 0 0 0. सो ये है हमारी लेफ्ट ओवर 7 बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर. ये सिंपल साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है. फिर आते हैं हम 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -12, साइंड 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -12. वैसे ही 8 बॉक्सेस बना लिए. ये जो माइनस साइन है इसकी जगह क्या आ गया 1 आ गया. अब ये जो नंबर है
इसको एज इट इज अब नहीं लिखना है। ये मेथड कौन सा है, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, जो बाइनरी में हमारी 7 बिट्स थी या 8 बिट्स थी, लगानी तो हमने यहाँ 7 ही है, जो बाइनरी में +12 था, अब हम उसका क्या करेंगे, 12 इन बाइनरी इज दिस, उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इन्वर्टिंग बाय इन्वर्टिंग जीरोज एंड वंस। ये 0 0 की जगह 1 1, 1 1 की जगह 0 0, ये जीरोस की जगह क्या आगे 1 1 1 1 आ गया। ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो इधर वाली 7 बिट्स हैं इनको हम यहाँ लिखेंगे। So this will become 1 1 0 0 1 1 1. So this is 1's complement of 12. So this whole 8-bit number represents -12 in signed 1's complement representation. Then coming on to signed 2's complement of -12. 2's complement क्या होता है, -12, ये माइनस की जगह 1 आ गया, बाकी 7 बिट्स जो हैं, ठीक है, ये जो ऊपर क्या निकाला था वंस कॉम्प्लीमेंट, अब उसका 2's कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया हुआ है वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये वाला जो नंबर है ये वंस 1 1 1 1 0 0 1 1, ये ऊपर हमने निकाला था वंस कॉम्प्लीमेंट, उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। 1 ऐड किया, 1 + 1 इज 0, कैरी इज 1, फिर 1 + 1 इज 0, कैरी इज 1, फिर ये 1 + 0 इज 1, ये 0 ऐसे 1 1 1 1। सो ये बन गया मेरा 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो इसकी ये वाली 7 बिट्स उठाएंगे और इनको यहाँ लिख देंगे। ये क्या होगी 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1, साइन बिट 1 है ये, तो टोटल 8 बिट्स होगी। तो ये नंबर जो है दिस इज -12 इन साइन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। So I hope you will be clear with this concept. Practice it. इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिए हैं वही एज ए क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस नंबर की वंस कॉम्प्लीमेंट जो है रिप्रेजेंटेशन दिखाओ, इसकी साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इसकी 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, ऐसे इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इसको क्लियर कर लो। देन वी विल बी मूविंग ऑन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर, इन सब का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अब आपको रिप्रेजेंटेशन पता चल गई है किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी मैं आपको एक वीडियो पोस्ट करूँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच।